दूसरी जंग अज़ीम में अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा करने के बाद अमेरिका एक सुपर पावर की हैसियत से दुनिया के सामने आया। गुज़िश्ता एक सदी में दुनिया पे अपना तसल्लुत कायम करने के लिए अमेरिका ने हमेशा दो हथियारों का इस्तेमाल किया है। एक उसकी फौजी ताकत और दूसरा उसका डॉलर। लिहाजा दुनिया का कोई भी मुल्क अगर खुद को डॉलर के तसल्लुत से आज़ाद करने की कोशिश करेगा तो उसको हमेशा अमेरिका की तरफ से जंग का सामना होगा। और अगर ये मुल्क कोई बड़ी ताकत जैसे चाइना या रशिया हो तो ये जंग दुनिया की तीसरी आलमी जंग भी बन सकती है। Nuclear peace deal, it wasn't really about Iran creating nuclear weapons to, destroy the United States. It was more about getting into the central bank, getting into the oil, putting the dollar on their oil. तो 75 में जब तेल बेचने वाले ममालिक की आलमी तंजीम ओपेक ने अमेरिका से मुआहदा किया कि वो अपने तेल को सिवाय डॉलर की किसी और करेंसी में नहीं बेचेंगे, उसके बाद से आज तक डॉलर की मांग में हमेशा इजाफा रहा है। क्योंकि जिस मुल्क को भी तेल की ज़रूरत होती है वो मजबूर है कि तेल खरीदने के लिए डॉलर्स खरीदे। क्योंकि अगर कोई सोने का पहाड़ लेके भी तेल बेचने वाले ममालिक के पास जाएगा तो वो उसको तेल नहीं देंगे। तेल खरीदने के लिए उसको हमेशा डॉलर की ज़रूरत रहेगी और यहीं से पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट वजूद में आया। The petrodollar is actually a device invented by Kissinger and Nixon. So in 1971, OPEC agreed that they would sell oil for only US dollars. You cannot buy oil unless you pay for it with US dollars. And that's when the US dollar became a petrodollar. दोस्तों, अब तक हम ये देख चुके हैं कि किस तरह अमेरिका ने डॉलर को पेट्रो डॉलर बनाकर दुनिया पर अपना मुआशी तसल्लुत कायम किया। जब तेल खरीदने वाले ममालिक को तेल खरीदने के लिए डॉलर्स की ज़रूरत ना होती तो ना ही डॉलर की मांग में इजाफा होता और ना ही डॉलर आज जितनी वैल्यू बरकरार रख पाता। यही वजह है कि आज तक दुनिया में तेल फरोख्त करने वाले ममालिक में से जिस किसी ने भी डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में अपना तेल फरोख्त करने की कोशिश की, उस पर हमला करके उसे निशाने इबरत बना दिया गया। नवंबर सन 2000 में इराक ने अपना तेल डॉलर्स के बजाय यूरोस में बेचना शुरू कर दिया। ये अमेरिका की मुआशी इजारादारी के ऊपर बराह रास्त हमला था और ऐसे हमलों का जवाब अमेरिका जंग से देता है। सन 2003 में अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया और इराक पे अपना तसल्लुत कायम करते ही पेट्रोल की फरोख्त वापस यूरोस से डॉलर्स में मुंतकिल कर दी गई। But some are convinced intervention in Libya is all about currency, specifically Gaddafi's plan to introduce the gold dinar, a single African currency made from gold, a true sharing of the wealth. It's one of these things that you have to plan almost in secret, because as soon as you say you're going to change over from the dollar to something else, you're going to be targeted. It's happened before. In 2000, Saddam Hussein announced Iraqi oil would be traded in euros, not dollars. Sanctions and an invasion followed. Why was Muammar Gaddafi killed? Muammar Gaddafi was murdered because he, along with the other African heads of state, were about to bring into existence Africa's first central bank. They were erecting a central bank in Africa, which was going to do what? Back its money to the resources under the ground in Africa. Now, what would that have done to the global economic order? Remember, the United States dollar isn't backed on any natural resource. The British pound isn't backed on any natural resource. The Canadian dollar, the European Union, their currency isn't backed on any natural resource because Europe doesn't have a lot of natural resources. Africa does. So if they would have been successful in creating a central bank of Africa, coming up with a unitary currency, and then backing that currency to the material wealth under the soil, they would have bankrupted every other economic system in this world from America to Europe to China. That was revolution. And that's why Muammar Gaddafi had to be assassinated. इराक और लीबिया के खतरे से निमटने के बाद पेट्रो डॉलर एक बार फिर खतरे में आया, लेकिन इस बार उसका मुकाबला इराक या लीबिया जैसे किसी कमज़ोर मुल्क से नहीं बल्कि दुनिया की उभरती हुई मुआशी और फौजी ताकत चाइना से है। चाइना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, वो अब से अपनी ज़रूरत का तमाम तेल डॉलर्स के बजाय चाइनीज़ युआन में ख़रीदेगा, जिनको
तेल फरोख्त करने वाला मुल्क वापस गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता होगा। और चाइना की इस कोशिश में उसको दुनिया की दूसरी बड़ी फौजी ताकत रूस की मुकम्मल हिमायत हासिल है। And so Russia and China have come together, and then came BRICS, with Russia leading the way in challenging the petrodollar monetary system. Russia, because Russia has stood up, China has said, we with you. Otherwise, China couldn't stand alone. No, China could not have stood up alone. China and Russia are refusing to bow their knees before the greatest oppressors that mankind has ever known. And because they're refusing to bend their knees, this is why the world is going to experience nuclear war. कि पेट्रो डॉलर के सर पर मंडलाता हुआ चाइना और रशिया का इत्तेहादी खतरा यकीनी तौर पे एक जंग का पेशखेमा साबित होगा। लेकिन चाइना और रशिया की इत्तेहादी कुव्वत के खिलाफ बराह रास्त जंग यकीनी तौर पे अमेरिका के लिए भी तबाहकुन साबित होगी। ये बड़ी ताकतें बराह रास्त जंग करने के बजाय छोटे ममालिक को अपना महादे जंग बनाकर वहाँ पर अपनी प्रॉक्सीज के जरिए वॉर करती हैं। ऐसी ही एक जंग सीरिया में लड़ी गई, जहाँ पे अमेरिका को रशिया के सामने बुरी तरह हजीमत का सामना करना पड़ा। आइंदा आने वाले दिनों में रशिया और चाइना की इस मुत्तहिदा कुव्वत को यूरोप और अमेरिका की मुत्तहिदा कुव्वतों का ऐसे ही किसी छोटे मुल्क में सामना करना होगा। ये मुकाबला यूक्रेन में भी हो सकता है और मिडिल ईस्ट के किसी छोटे मुल्क में भी, लेकिन तेजी से बनते हुए इत्तेहादों को देखकर ये यकीनी लगता है कि इस बार ये जंग तीसरी आलमी जंग में बदल जाएगी। रोड टू वर्ल्ड वॉर सीरीज का दूसरा हिस्सा अगले हफ्ते रिलीज किया जाएगा। उसको देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खान विड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा फेसबुक पेज है नामालूम विड्स।